Students, my next topic is cell reference and its type. The cell address that we use in the formula is known as the cell reference. The cell address that we use in the formula. अपने formula के अंदर हम जौन सा भी सेल एड्रेस यूज़ करेंगे, फॉर्मूला के अंदर अगर मान लो मैंने अपना यहाँ कोई फॉर्मूला लगाया एंड फॉर्मूला के अंदर मैंने ये सेल सिलेक्ट करी, ये सेल सिलेक्ट करी या ये सेल सिलेक्ट करी, तो ये हमारा होता है सेल रेफरेंस. फॉर एग्जाम्पल A1 where A denotes the column name and 1 denote the row number. If I click on this cell address, this is my active cell. What is the cell address of this? A2. If I click on this, what is my cell address? A1. This is my column name and this is my row name. You can also see in the name box what is my cell address. So if I use any of this cell address in my formula, then it is known as cell reference. So there are, students, three type of cell reference. How many type of cell reference? There are three type of cell reference. One is relative reference, one is relative reference, and second is absolute reference, and third is mixed reference. First is relative reference, second is absolute reference, and third is mixed reference. So we will study one by one. First is relative reference. When you create a formula, references to a cell or ranges are usually based on the position relative to the cell. For example, I just want to apply here formula. Okay, so first what I write here is equal to, I just want to calculate the total of January month unit sold to June month unit sold. Means I just want to calculate from this cell address to this. This is my starting cell address and this is my ending cell address. So what I have write here formula is equal to sum bracket start B2 colon B7, and then I would bracket closed and then I just press enter. Okay, observe that the cell reference in C8 automatically from B2 B7 to C2 C7. See here, students, what is here. If I want to calculate the total of this starting cell expenses, this is my starting cell address and this is my ending start address. So what we have write is equal to sum bracket start C2 colon C7 bracket closed, and then I press enter. This is the now. So if I don't write here formula, okay, I just deleting it. Okay, this I have applied here formula, and what is the formula? Tell me. Is equal to sum bracket start B2 colon B7. This is my formula for calculation in this B8 cell. I also want here same formula, but the range is from C2 to C7. So मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगी, इस सेल को मैं सिलेक्ट करूँगी एंड मैं अपनी माउस की लेफ्ट बटन से यहाँ से स्क्रॉल कर दूँगी. यहाँ से इसके, ठीक है, देखिए यहाँ कर दोबारा करके बताती हूँ. इस सेल पे मैंने क्लिक किया जिस पर मेरा फॉर्मूला अप्लाई था, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट B2 कॉलन B7. अब मुझे करना क्या है, इसके बिल्कुल कॉर्नर में जाकर जब आपका ऐसा सिंबल आ जाए ब्लैक कलर का प्लस, तो आपने अपने लेफ्ट माउस बटन से इसको स्क्रॉल कर देना है. देखिए अब जो यहाँ पर कैलकुलेट हो गया फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला क्या है आप यहाँ देख सकते हैं, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट C2 कॉलन C7. सो आप किसी भी फॉर्मूला को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऑटोमेटिकली कॉपी कर सकते हैं. दिस इज रिलेटिव रेफरेंस. व्हाट आई हैव डन, again
आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट इज रिलेटिव रेफरेंस। अगर हम एक सेम फॉर्मूला को दूसरे सेल्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर मेरा फॉर्मूला लगा हुआ है इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट B2 कॉलन B7, और मैं इसी फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करना चाहती हूँ, और मैं ये भी चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ इस फॉर्मूला को अप्लाई करूँ तो मेरी रेंज C2 से C7 आए, ना कि B2 से B7, क्योंकि मैं यहाँ पर इसके लिए कैलकुलेट कर रही हूँ ना। तो मैंने क्या किया, जब मेरा यहाँ कैलकुलेट हो गया था, इसके कॉर्नर में गई और यहाँ से ड्रैग कर दिया इसको इधर, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। इफ यू वांट टू सी द फॉर्मूला यू कैन जस्ट क्लिक ऑन this cell and see formula is equal to sum bracket start C2 colon C7. You don't have to write the same formula again and again for the total. Okay students, so my next topic is students absolute reference. So what is absolute reference? Absolute reference is used when we do not want to change the एड्रेस ऑफ दिस सेल। जब आप अपने सेल के एड्रेस को चेंज नहीं करना चाहते, मीन्स जब आप कॉपी कर रहे थे फॉर्मूला को या ड्रैग कर रहे थे तो वही सेम फॉर्मूला नेक्स्ट सेल पर कॉपी हो रहा था। बट आपने ये चीज़ देखी होगी कि उस टाइम अगर हमारा B1 to B7 तक सिलेक्टेड था, तो जब हमने फॉर्मूला कॉपी करा तो वो ऑटोमेटिकली C2 से C7 तक हो गया। तो अगर हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो जो वैल्यू है ना वो चेंज ना हो, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। मैं यहाँ पर सेल एड्रेस पर टाइप कर रही हूँ 10%। ओके, मैंने 10% यहाँ टाइप कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, D2 पर जाऊँगी। मैंने यहाँ पर क्या टाइप कर दिया, 10%। कहाँ पर, E11 सेल एड्रेस पर। अब मैं जा रही हूँ D2 सेल एड्रेस पर गई मैं। हमें यहाँ पर क्या लिखती हूँ देखिएगा, इज इक्वल टू B2, ये B2 है ना मेरा, इज इक्वल टू B2 मल्टीप्लाई, मुझे इंसेंटिव अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूँगी, जो मेरी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है ना उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी इससे 10%। और मैं चाहती हूँ जब मैं सभी सेल को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो मेरा 10% ही रहे, वो वैल्यू चेंज ना हो। तो मैं क्या करूँगी, इज इक्वल टू B2 स्टार मल्टीप्लाई डॉलर सिंबल, ओके, मेरा ये कौन से सेल में था, E11 में था ना, और मैं चाहती हूँ मेरा कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट के लिए हम क्या करते हैं, डॉलर सिंबल का यूज़ करते हैं। अब मैं लिखूंगी E, ओके, अब फिर मैं अगेन डॉलर सिंबल अप्लाई करूंगी और 11, ओके, एंड देन आई प्रेस दी एंटर की। तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया 10% से, तो मेरा क्या आ गया 100। और मैं चाहती हूँ जब मैं इस फॉर्मूला को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ ना, मीन्स सेम फॉर्मूला मैं यहाँ से यहाँ तक लेके आऊँ, तो वो 10% चेंज ना हो, वो 10% कांस्टेंट रहे। जब मैं कांस्टेंट चाहती हूँ तो मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज़ करती हूँ, और मैं सिर्फ पूरे एड्रेस में एक जगह पर चाह रही हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, डॉलर का वहाँ पर यूज़ कर दिया। तो अगर आप इसे ड्रैग करेंगे ना, यहाँ देखिए, तो देखिए 2000 का 10% 200 ही होता है, 1500 का 10% 150 ही होता है, 2000 का 10% 200 ही होता है, 1300 का 10% 130 ही होता है, एंड 1100 का 10% 110 ही होता है। सो हमने क्या किया, कांस्टेंट बनाने के लिए 10 इस सेल एड्रेस को हमने डॉलर सिंबल का यूज़ किया। दिस इज मीन्स मैं इसको इज इक्वल टू B2 मल्टीप्लाई डॉलर $11 एंड देन आई प्रेस दी एंटर की। अगर आप अगेन देखना चाहते हैं दोबारा करके देख लेते हैं। देखो, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है कि डॉलर क्यों लगा रहे हैं, तो मैं एक बार डॉलर नहीं लगाती, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी, इज इक्वल सॉरी, यहाँ पे डॉलर इसलिए लगाया जाता है किसी भी वैल्यू को कांस्टेंट बनाने के लिए। इज इक्वल टू सॉरी, इज इक्वल टू B2, मैं इस B2 को मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ इससे, यानी कि इसका सेल एड्रेस क्या है E11 से, मैं B2 को E11 से मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ। तो इज इक्वल टू B2 लिखा, मल्टीप्लाई सिंबल लगाया। अगर मैं सिंपल लिख दूंगी ना E2, मान लो अगर मैंने सिंपल E11 लिख दिया, अगर मैं सिंपल लिख दिया, तो मैं अगर इसको ड्रैग करूँगी तो मेरा रिजल्ट सेम नहीं आएगा जो मैं चाहती हूँ। देखिए
रिजल्ट मेरा गलत आ रहा है, क्योंकि ये वैल्यू चेंज होती जा रही है जो मुझे चेंज नहीं करनी, मुझे कांस्टेंट रखनी है। तो कांस्टेंट रखने के लिए क्या करते हैं, दोबारा से बताती हूँ इसको पहले मैं। कांस्टेंट बनाने के लिए सबसे पहले इज इक्वल टू B2 मल्टीप्लाई, किसको करना है, इसको करना है, और मैं चाहती हूँ वैल्यू कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट बनाने के लिए मैंने क्या प्रेस किया, डॉलर सिंबल, एंड व्हाट इज द सेल एड्रेस ऑफ दिस, E11 E $11 and then I press enter. If I scroll this, see here the result is correct. 2000 का 10% 200 होता है, so मेरे सारे रिजल्ट ठीक है। This is absolute reference. My next is what is mixed reference. Mixed reference, it is a combination of relative and absolute reference. रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस की कॉम्बिनेशन को बोलते हैं मिक्स्ड रेफरेंस। व्हाट इज मिक्स्ड रेफरेंस, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। इन दिस टाइप ऑफ रेफरेंस अगर आप रो और कॉलम दोनों को फिक्स करना चाहते हैं, मीन्स अभी तक हमने एक वैल्यू सिंपल लिखी थी इज इक्वल टू B2 एंड फिर स्टार लगा के हमने इसको डॉलर कांस्टेंट बनाया था। अगर मैं रो और कॉलम दोनों को कांस्टेंट बनाना चाहती हूँ तो मैं मिक्स्ड रेफरेंस का यूज़ करूँगी। सो मैं करती क्या हूँ, मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ। मैं E12 पर, ठीक है, अभी मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ से। तो मैंने इस सेल के अंदर, ये मेरे सेल कौन सेल है, E12, मैंने यहाँ पर लिख दिया 100, क्या लिख दिया 100। ओके, अब मैं जा रही हूँ E2 सेल पर, E2 सेल पर। यहाँ पर ये क्यों चीज 0 हो गई, क्योंकि मैंने यहाँ से क्या हटा दिया, 10% हटा दिया। तो मैं 10% लिख दूं, देखिए। चलो अब हम आते हैं मिक्स्ड रेफरेंस पे जिसकी हम बात कर रहे थे। अगर मैं रो और कॉलम दोनों को कांस्टेंट बनाना चाहती हूँ तो मैं मिक्स्ड रेफरेंस का यूज करूंगी। एंड मिक्स्ड रेफरेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। सो हमें यहाँ पर, अभी मैंने E12 सेल एड्रेस पर 100 लिख दिया है। अब मैं जा रही हूँ E2 सेल एड्रेस पर। ओके, जब मैं E2 सेल पर गई तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा इज इक्वल टू, अब मैं रो और कॉलम दोनों को कांस्टेंट बनाना चाहती हूँ, फिक्स बनाना चाहती हूँ। कांस्टेंट मीन्स फिक्स्ड। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, डॉलर, एक्सपेंसेस पे काम कर रहे हैं हम, तो C2 माइनस एक्चुअल एक्सपेंस कैसे निकलेगा, एक्चुअल एक्सपेंस हमारा निकलेगा C2 माइनस E12। मान लो मेरा ये एक्सपेंस था और मैं इसके अंदर से वो वाला अमाउंट माइनस कर रही हूँ जो मैंने लिखा है। तो इज इक्वल टू डॉलर C2 माइनस डॉलर 12। ओके, सो ये मेरा फॉर्मूला, मैंने एंटर प्रेस किया तो 200 में से 100 जाएंगे तो कितने आएंगे, 100 ही आएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, 100 लिखा था। तो अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेती हूँ। तो इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा, 100 में से 100 गए 0, 300 में से 100 गए 200। तो इस तरह से हम कांस्टेंट बनाते हैं, रो को भी और कॉलम को भी। सो दिस इज अबाउट मिक्स्ड रेफरेंस, दिस इज अबाउट